Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Let's do what is the date? Date is 3rd August 2021, and today we will start a new chapter. Name of the chapter is Birds, Our Feathered Friends. Birds, our feathered So, name of the new chapter is Birds, Our Feathered Friends. Is it clear? So, name of the new chapter is Birds, Our Feathered Friend. So, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So, student, in the previous video we have completed question answers of the chapter, that is chapter number 5, Animals Around Us. So, in the previous video, student, we have completed the question answers of the chapter 5th, that is Animal Around Us. Now, today we will start a new chapter, Birds, Our Feathered Friends. Okay, so let's do little recapitulation. What in the previous chapter, student, we study a chapter and name of the chapter is Animal Around Us. Okay, so in that we discuss different types of animals which are present in our surroundings. ठीक है, उस समय हमने बहुत से एनिमल्स की ऐसी बातें की थी बेटा जो एनिमल्स हमारे सराउंडिंग्स में थे. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स they have different types of a teeth. Okay, and when we are talking about the eating habits of the animal, due to that the animals are divided into 3 groups, that is herbivorous animals, plant eating animals, next is a carnivorous animal, flesh eating animal which kill other animal and eat the flesh, and the third category is omnivorous animals, animals which eat both plants and animals. So in the same manner, now in this new chapter, Birds, Our Feathered Friends, so we will discuss different types of birds which we observe in our surroundings. ठीक है, birds. ठीक है, अब देखो animals. अब बर्ड्स की जब बात करते हैं तो बर्ड्स भी किस कैटेगरी में आता है बेटा? एनिमल्स में ही आता है. बट हाउ द बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम एंड अदर एनिमल्स, दैट आई विल डिस्कस विद यू इन दिस चैप्टर. सो वी विल स्टडी अबाउट द बर्ड्स. तो आप अपने सराउंडिंग में बहुत से बर्ड्स देखते होंगे, तो क्या डिफरेंस आप देखते होंगे उन बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स में? आप देखते होंगे कि बर्ड्स कैन फ्लाई, एनिमल्स 4 legs पे रन करते हैं, वॉक करते हैं, बट दे डू नॉट फ्लाई. आपने बर्ड्स देखे होंगे, जो आपने बर्ड्स बहुत डिफरेंट कलर्स के, साइज के, देयर इज जिस तरह एनिमल्स में
डिफरेंस था शेप और साइज का, इन द सेम मैनर यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए कलरफुल बर्ड्स इन योर सराउंडिंग. Some of them are very big size, some of them are medium size, and some of them are very small size. So these different types of birds you have seen in your surroundings. And when we are talking about the bird, then what is the other difference, main difference you have seen in other animals and the birds? Mostly all the bird fly. मोस्टली जो भी बर्ड्स हैं बेटा वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, क्योंकि उनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं. ठीक है, उनके पंख होते हैं, विंग्स होते हैं. एंड ड्यू टू दिस विंग्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस वो कैसे जाते हैं, फ्लाई करके जाते हैं. ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट लेट अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स विच वी have to study in this chapter. What are the learning objectives? So one by one we will discuss this. And then first point is different birds, different birds, different birds have different birds have different beaks. Beaks according to their feeding habits. जैसे हमने बेटा एनिमल अराउंड अस में पढ़ा था, due to the different eating habits they are divided into three groups: herbivorous, carnivorous and omnivorous. In the same manner different birds have different beaks. So why this difference is due to their eating habits. ठीक है, डिफरेंट बर्ड्स की भी डिफरेंट बीक्स होती है, सबकी बीक एक जैसी नहीं होती है. ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन द चैप्टर. अभी जब हम लोग तो मेन है ऑब्जेक्टिव, बट लर्निंग ऑब्जेक्टिव विच वी स्टडी इन दिस चैप्टर, दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स. बीक्स बोलते हैं जो बर्ड्स की चोंच होती है. ठीक है, बीक्स क्या होती है, बर्ड्स की चोंच होती है, उसको क्या बोलते हैं, बीक्स बोलते हैं. ठीक है, तो हर बर्ड्स की जो डिफरेंट बर्ड्स हैं उनकी बीक्स क्या अलग अलग होती हैं. एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? रीजन क्या है, देयर फीडिंग हैबिट्स. ठीक है, रीजन क्या है कि वो जिस तरह का खाना खाते हैं, ठीक है, उनकी बीक्स वैसे ही होती है. जिस तरह का वो खाना खाएंगे उनकी बीक्स वैसे ही होती है. Is it clear? So this thing we will study in this chapter. Second learning objective is the importance of wings and feathers. Second important thing which we will study in this chapter is that what is the importance of wings and feathers. ठीक है, तो इसमें देखो बर्ड्स के डिफरेंट टाइप्स के फेदर्स होते हैं. ठीक है, एक फेदर क्या होता है, बॉडी को कवर करता है. एक फेदर क्या है, जो द बर्ड इज यूज फॉर द फ्लाइंग, जिसको हम फ्लाइंग फेदर्स भी बोलते हैं. ठीक है, सो birds have different types of feathers
and the tail of the bird also play a very important role. The bird use their tail at the time of flying. They change the direction with the help of their tail. Is it clear? So the importance of wings and feather we will study. Third point, fit and class are different in different birds. Third important point is fit and class. Fit and class are different. Okay, so fit and class are different in different birds. ठीक है, और ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है? ड्यू टू देयर फीडिंग हैबिट्स, ड्यू टू देयर फीडिंग हैबिट्स. ठीक है, सो जो बर्ड्स के फिट होते हैं, क्लास के होते हैं जो उनके पंजे होते हैं. जैसे आपके भी नेल्स होते हैं ना, आपके बेटा नेल्स होते हैं, इसी तरह बर्ड्स को क्या होते हैं, उनके क्लास जो पंजे हैं उनके, तो वो भी डिफर होते हैं सारे बर्ड्स में. और दैट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स. उनके फीडिंग हैबिट्स की वजह से उनके जो क्लास होंगे वो भी क्या करेंगे, उनके फिट और क्लास भी क्या होंगे बेटा, वो डिफर होंगे. ठीक है, so now the next what is next objective, next learning objective, the material used for building nest. The material used for making nest. So as you know that the young ones of the birds, how the young of one of the birds come, they come from the eggs. So bird lay the eggs, they come in the category of oviparous. ये आपको प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था. ठीक है, वो एनिमल्स जिनके बच्चे, जिनके यंग वन अंडों में से आते हैं, एग्स में, उन्हें ओविपेरस बोलते हैं. उन्हें क्या बोलते हैं? ओविपेरस बोलते हैं. ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 में भी मैंने आपको बताया था. सो एट द टाइम when they lay the eggs, when the birds lay the eggs, so what they do, first they make nest. ठीक है, ऐसे ओपन प्लेसेस में बर्ड्स अपने अंडे नहीं देते हैं. ठीक है, जब वो अंडे देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके अंडों से उनके यंग वंस आएंगे. ठीक है, तो दे मेक नेस्ट फॉर दैट, सो दैट एंड बिफोर and for many days the bird sit on the egg so that to keep the egg warm. जब egg warm होगा तो उनके young ones की क्या डेवलपमेंट फास्ट होगी. ठीक है, और जब अंडे हैच होते हैं तो उसमें से उनके क्या आते हैं, young ones आते हैं. ठीक है, so what are the things which we will study in this chapter? The 4 important points. First, different birds have different beaks. ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, कि डिफरेंट बर्ड्स की डिफरेंट बीक्स होती है, एंड दिस इज ड्यू टू देयर फीडिंग हैबिट. ठीक है, वो जिस तरह का खाना खाते हैं उस तरह की उनकी बीक होती है. ठीक है, जैसे मैंने बोला था कार्निवोरस एनिमल, उनके फ्रंट के टीथ बहुत स्ट्रांग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, क्योंकि वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, और फ्लैश को खाने में बहुत, फ्लैश क्या होता है, बहुत हार्ड होता है. वो लीव्स की तरह सॉफ्ट थोड़ी ना है.
लीव्स तो आप छोटे बच्चे भी बहुत इजीली से अपने हैंड से ब्रेक कर सकते हो, लेकिन फ्लैश जो होता है, मांस का टुकड़ा बहुत हार्ड होता है, तो ऐसे एनिमल्स के टीथ बहुत स्ट्रांग होते हैं। इन द सेम मैनर द बर्ड्स आल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, मतलब जो बर्ड्स होते हैं उनकी अलग अलग तरह की क्या होती है, चोंच होती है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वो खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बर्ड्स। और सेकेंड पॉइंट था आपका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ विंग्स फॉर द बर्ड्स। विंग्स और फेदर बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विंग्स की वजह से बर्ड्स कैन फ्लू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट देयर आर सम बर्ड आल्सो विच कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बर्ड्स फ्लाई। और फेदर्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये बॉडी फेदर जो होते हैं बर्ड की बॉडी को क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं। वो हम ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स क्लोथ नहीं पहनते, ठीक है। तो हाउ द बॉडी ऑफ द बर्ड इज वार्म, so this is due to the body feather, this is due to the body feather। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिट एंड क्लास, जो उनके पैर जो होते हैं और जो उनके जो पंजे होते हैं, ठीक है, वो आल्सो डिफर करते हैं डिफरेंट बर्ड्स में। एंड दिस आल्सो डिपेंड अपॉन द फीडिंग हैबिट। ये भी किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये भी डिपेंड करता है फीडिंग हैबिट ऑफ द बर्ड्स। किस पे डिपेंड करता है, ये फीडिंग हैबिट ऑफ द बर्ड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, दैट इज द ऑल द बर्ड्स द मटीरियल बर्ड बिल्ड नेस्ट एंड डिफरेंट बर्ड्स यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल, ठीक है। बर्ड क्या करते हैं, दे मेक अ नेस्ट, बिकॉज इन दिस नेस्ट दे ले एग्स, एंड आफ्टर दैट female birds sit on that egg for many days and hatch that egg, and from that egg the young ones comes out. So the material which is used by the birds in making the nest, that also differ in different birds। जो मटेरियल वो लोग यूज करते हैं ना बेटा नेस्ट बनाने के लिए, तो वो भी डिफर होता है, ठीक है। बहुत से बर्ड कुछ यूज करते हैं, बहुत से बर्ड, तो different types of materials they, and these materials they, from where they get this material, they get this material from the surroundings। उनके सराउंडिंग्स में जो होता है उन्हीं मटेरियल्स को यूज करके वो लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। अभी ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बर्ड्स, और मैं पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा कि बर्ड्स के डिफरेंट बर्ड बिल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट, ठीक है। तो आई होप बर्ड इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू। आप सभी बच्चों ने, आप क्लास 3 के बच्चे हो, आई होप हर बच्चे ने बहुत से बर्ड्स देखे होंगे। तो बेटा आपने जब बहुत से बर्ड्स देखे होंगे तो आपने क्या चीजें ऑब्जर्व की होंगी, शेप एंड साइज ऑफ द बर्ड, कलर ऑफ द बर्ड, द साउंड विच दे प्रोड्यूस, दैट इज आल्सो डिफर इन डिफरेंट बर्ड्स। So and the type of food which they are eating, so different eating habits of the birds that also you have observed in your surrounding। जैसे क्रो की हम बात करते हैं, ठीक है। क्रो इट कम्स इन विच कैटेगरी, ओमनीवोरस, वो प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और फ्लैश भी खाता है। आपने कई बार देखा होगा कि क्रो क्या खा रहा है, रैट को खा रहा है, ठीक है। वो दूसरे जो बर्ड्स होते हैं, स्मॉल बर्ड्स होते हैं, उनके अंडों को भी खा जाता है। तो क्रो क्या है, ओमनीवोरस एनिमल्स में आता है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन अकॉर्डिंग टू द ईटिंग हैबिट देयर इज आल्सो डिफरेंस इन देयर बीक्स। उनके ईटिंग हैबिट की वजह से भी उनके बीक्स में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ऑल द बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। नाउ लेट बर्ड्स आर एनिमल्स। अब जब हम बर्ड्स की बात करेंगे तो बर्ड्स की जब बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बर्ड्स आर एनिमल्स विद फेदर्स, ठीक है। जैसे और एनिमल्स की बात किए थे तो हमने क्या देखा था, बाकी एनिमल्स में दे मूव ऑन देयर, दे वॉक और रन ऑन देयर 4 legs, बट द बर्ड्स हैव फेदर्स, दे हैव बिग विंग्स, ठीक है, उनके पंख होते हैं, विद विच दे कैन फ्लाई,
लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि सारे बर्ड्स उड़ते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते। आपने पेंगुइन देखा होगा, अगर रियल में नहीं देखा होगा तो आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, या डिस्कवरी चैनल में, एनिमल प्लेनेट चैनल में आप एनिमल्स देख सकते हो, ठीक है। तो आपने पेंगुइन देखा होगा, ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट बर्ड, सबसे बड़ा बर्ड ऑस्ट्रिच, ओके। सो ये ऐसे बर्ड्स हैं, ये हैं बर्ड्स की कैटेगरी में, बट दे कैन नॉट फ्लाई, ये फ्लाई नहीं करते, ठीक है। ये आते बर्ड्स की कैटेगरी में ही है, बट दे कैन नॉट फ्लाई। लेकिन ये बहुत तेज रन कर सकता है ऑस्ट्रिच, ठीक है। फास्टेस्ट रनिंग बर्ड है आपका ऑस्ट्रिच। ये आपने जीके में भी क्लास 3 के पढ़ा होगा। सबसे बिग बर्ड आपका है ऑस्ट्रिच है, ओके। सो अब देखो, जिस तरह हम ह्यूमन बीइंग्स की बैकबोन होती है, ठीक है, ये जो हमारी पीछे अगर हम अपने बैक पे यहाँ टच करें तो कुछ हमें हार्ड सा फील होता है, तो ये क्या है हमारी बेटा, ये हमारी बैकबोन है, ठीक है। और बैकबोन के अंदर किसको प्रोटेक्ट होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये कनेक्ट जाके ब्रेन से कनेक्ट है आपके, ठीक है। तो बॉडी में जितने भी मैसेजेस हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन आपकी कहाँ है, टॉप में, ये चैप्टर 2 में मैंने तुम लोग को अपर बॉडी में बताया था, ब्रेन क्या है यहाँ, ठीक है। सारे सेंस ऑर्गन्स, आईज है, नोज है, स्किन है, ठीक है, ये सेंस ऑर्गन जो मैंने आप लोग को बताए थे, तो ये सारे तो यहाँ आ जा रहे हैं। लेकिन देखो हमारी बॉडी के और भी ऑर्गन्स हैं, और बॉडी और कंट्रोलिंग ऑर्गन कौन है हमारी बॉडी का, वो है बेटा ब्रेन, ठीक है। पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है। तो हमारी बॉडी में और भी पार्ट्स हैं, इसलिए ये ब्रेन का ही पार्ट है, तुम्हारे नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। ये एक्सटेंड होके नीचे आ गया, और इसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा, आपकी बैकबोन प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह हमारे बॉडी में बैकबोन होती है, तो दे हैव ए बैकबोन, ओके। एंड फीमेल बर्ड्स ले एग्स, ठीक है। और जो बर्ड्स, सो फीमेल बर्ड्स ले एग्स, दे हैव बैकबोन भी होती है, और बर्ड यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच, होल्ड एंड ईट देयर फूड, ठीक है। उनकी बीक्स, बर्ड्स देखो जैसे हमारे पास क्या हैंड्स हैं, हाउ वी ईट द फूड, वी ईट द फूड विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड, ठीक है। अब इसी तरह बर्ड्स क्या करता है, वो अपने बीक से, जो उसकी चोंच होती है, जो पंजे होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से अपने फूड को होल्ड करता है, ठीक है। हम किसी चीज़ को होल्ड कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ को अपने हैंड से करते हैं, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल ये चॉप है, देखो मैंने अपने फिंगर से इसे होल्ड कर रखा है, तो वो अपने फूड को पकड़ने का काम किससे करते हैं, अपनी चोंच से करते हैं, बीक्स और क्लास जो उनके पंजे होते हैं, ओके। टू कैच, होल्ड एंड ईट द फूड। टू कैच मतलब कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, जैसे एनिमल्स में हमने डिस्कस किया ना था, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एनिमल्स और ओमनीवोरस एनिमल। तो कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, तो टू कैच देयर प्री, जिस चीज़ को वो लोग मार के खाते हैं, उसको पकड़ने के लिए भी वो अपने क्लास को यूज़ करते हैं, पंजों को यूज़ करते हैं, ठीक है। और किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए भी दे यूज दिस, ओके। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो लेट राइट सम important points about the birds. So what are birds? So student, birds, what are birds? Birds are animals. Birds are animals with feathers, with feathers, ठीक है। बर्ड्स कैसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स के पंख होते हैं, इज इट क्लियर।
एंड यू डोंट राइट दिस थिंग इन योर क्लास वर्क कॉपी। बहुत बच्चों ने इस बार जब वर्क किया था, व्हाट आई एम टीचिंग यू ऑन द बोर्ड, ये आपकी हेल्प के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप पूरे पॉइंट्स की तरह क्लास वर्क कॉपी में लिखते हो। क्लास वर्क कॉपी में यू विल राइट ओनली क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर एंड यू विल ड्रॉ द डायग्राम, एंड इफ दीज पॉइंट्स यू वांट टू राइट, यू कैन राइट इन ए योर EVS रफ कॉपी, नॉट इन द क्लास वर्क कॉपी। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये पॉइंट्स अगर आप नोट करना चाहते हो बेटा, तो आप अपनी रफ कॉपी में लिख लोगे EVS की, क्लास वर्क कॉपी में नहीं लिखोगे। क्लास वर्क कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और डायग्राम ड्रॉ करने हैं, ठीक है। दे हैव wings, ठीक है, and these wings they used to fly, but all the birds do not fly. Maximum birds flies, few birds do not fly. Another important point about the bird is they have backbone. They have a backbone. And how they eat the food? Next important thing is how the birds eat their food. So they eat their food with the help of their beaks. How they eat their food? They use their beaks. They use their beaks. Okay, they use their beaks and claws क्या होते हैं बेटा? पंजे, ठीक है। जैसे हमारे नेल्स होते हैं ना, उसी तरह उनके नेल्स को क्लास बोलते हैं। क्ला मतलब पंजे, ठीक है। द बीक्स एंड क्ला to catch, hold and eat their food. So they use their beaks and claws. They use their beaks and claws to catch, hold and eat their food. Is it clear? So these are the few important points about the birds. Birds are animal with feathers. They have feathers. They use their wings to move from one place. और देखो, जब हम लोग बर्ड की विंग्स की बात करते हैं ना बेटा, तो विंग्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ बर्ड्स के विंग्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ बर्ड के बहुत स्लो होते हैं, अरे सॉरी स्लो बोल रहा हूँ, बहुत स्मॉल होते हैं। ओके, मेरे मुंह से स्लो निकल गया, इट इज स्मॉल। देखो, तो बर्ड के जो विंग्स होते हैं ना बेटा, दैट इज आर आल्सो ऑफ ए डिफरेंट साइज। इट डिपेंड्स अपॉन द बर्ड कि बहुत, अब ये बर्ड्स के विंग्स इस पे भी डिपेंड करते हैं कि बर्ड्स या तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हाइट पे उड़ने वाला है या तो बहुत हाइट पे नहीं उड़ता है। जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनके विंग्स बहुत स्मॉल होते हैं ना, वो हरदम फ्लैप करते हैं। आप छोटे जब बर्ड्स को उड़ते देखोगे, उनके जो विंग फ्लैप्स होते हैं बहुत तेजी से उड़ते हैं, ठीक है, वो अपने विंग्स को बहुत तेजी से फ्लैप करते हैं स्मॉल बर्ड्स, ठीक है। सो विंग्स के साइज भी जो होते हैं बर्ड्स के, जिस तरह बर्ड्स की बीक्स जो होती है, चोंच होती है, अलग अलग होते हैं। बर्ड्स के क्लास पंजे भी होते हैं, वो भी अलग होते हैं। और ऑल द रीजन इज
ड्यू टू देयर फीडिंग हैबिट। सबके पीछे रीजन क्या है? उनकी बीक्स भी डिफर है, उनके क्लास भी डिफर है, उनके फेदर्स विंग्स भी स्मॉल और बिग हैं, और डिपेंड अपॉन द feeding habits of the birds. Okay, thank you student. We will continue this topic in the next video.